بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا مشرکین کو چیلنج۔ قرآن کریم نے مشرکین کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی بھی کوئی تخلیق ہو تو مجھے دکھاؤ۔ لقمان آیت نمبر 11۔ قرآن کا یہ چیلنج اتنا قاہر اور مسخط ہے کہ اس کے آگے سارے جھوٹے خداؤں کی کلئی کھل جاتی ہے۔ دنیا میں جھوٹی خدائی کے ایک سے ایک دعوے دار پیدا ہوئے، لیکن یہ دعویٰ کرنے کی ہمت کسی میں ہوئی کہ زمین ہم نے بنائی، آسمان ہم نے پیدا کیا، چاند اور سورج کے خالق ہمیں، یہ سارا کارخانہ ہستی ہم چلا رہے ہیں۔ خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں سے یہ جھوٹ اس لیے نہیں بولا گیا کہ یہاں کچھ کر کے دکھانے کا سوال تھا۔ نمرود کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات رکھی تھی کہ میرا خدا پورب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر خدائی کے دعوے میں سچا ہے تو اسے مغرب پچھم سے نکال دے۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ بات سن کر کافر کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اس دلیل کا کوئی جواب اس لیے اس سے نہیں بن سکا کہ منہ سے خدائی کا دعویٰ کر دینا تو آسان ہے، لیکن خدائی کا کام انجام دینا انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ عبادت کے لائق یہ بات ہے، یا وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے خوشنما باغ اگائے۔ تمہاری بساط نہ تھی کہ تم باغ کے پیڑ اگاتے، کیا اللہ کے سوا اور کوئی خدا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سورہ نمل آیت نمبر 7۔ یہاں سے بت پرستوں اور مشرکوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ جن خداؤں کی تم پرستش کرتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا خالق اللہ ہے، ہر قسم کے انعامات و احسانات کا سرچشمہ فقط اسی کے ذات والا صفات ہے، تو پھر کسی اور کو خدا کیوں بنایا جائے؟ چنانچہ کائنات کی مختلف چیزوں کو مشرکین کے سامنے یکے بعد دیگرے پیش کیا جا رہا ہے، اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ان کی تخلیق، ان کی تزئین اور ان کی نشو و نما میں کسی اور کا بھی کوئی حصہ ہے تاکہ اسے خدا بنایا جائے اور اسے پوجا جائے؟ پہلا سوال ان سے یہ کیا گیا کہ آسمان زمین کس نے پیدا فرمائی؟ پھر یہ بتاؤ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ تمہارے دائیں اور بائیں یہ خوش منظر باغات جو لہلہا رہے ہیں کس نے اگائے ہیں؟ تم میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ تم آج خود ایک پودا بھی اگا سکو۔ اے بتوں کو پوجنے والوں، بتاؤ کیا آسمان زمین کی تخلیق یا ان باغات کی آفرینش میں کوئی اور خدا بھی شریک ہے؟ اگر تم بھی مانتے ہو کہ ان سب کا خالق اللہ ہے تو پھر تم اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کیوں نہیں کرتے؟ یا کافر بھی عجیب و غریب مخلوق ہیں، اتنے واضح دلائل کے باوجود اللہ تعالیٰ سے روگردان ہیں، یا ان بت پرستوں کو اس کا ہمسر سمجھتے ہیں؟ روح المعانی۔ عبادت کے لائق یہ بت ہے، یا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہائش کے قابل بنایا اور تمہارے درمیان نہریں نکالیں، اور اس کا توازن برقرار رکھنے کے لیے اس میں پہاڑوں کے لنگر کھڑے کیے، اور دو سمندروں کے درمیان نظر نہ آنے والی ایک دیوار حائل کی کہ ایک کا رنگ دوسرے کے ہاتھ نہ مل سکے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نمل آیت نمبر 61۔ قرار کا معنی ہے مستقر، یعنی ٹھہرنے کی جگہ جہاں تم آباد ہو اور اپنی زندگی خوشی و آرام سے بسر کر رہے ہو۔ قرار کے ایک لفظ میں آپ جتنا غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی شان ربوبیت کے انگنت کرشمے آپ کو یہاں سمتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انسانی زندگی کی بقا اور نشو و نما کے لیے زمین میں کن خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے؟ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اگر موجود نہ ہوں تو انسانی زندگی ان رعنائیوں اور مسرتوں سے اکثر خالی ہے، جس سے اب اس کا دامن معمور ہے؟ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کا سراغ نہ لگایا جا سکے تو ایجاد و اختراع کی بے پناہ قوتیں جو آپ کی فطرت میں مجمن ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بیکار پڑی ہیں؟ ان تمام وسائل اور اسباب کی اہم رسانی کے بعد ہی
इंसानी ज़िंदगी को बका और नस्वा नुमा नसीब हो सकती है। गरज के करार के लफ्ज़ में आप जितना गौर करते चले जाएंगे, मारिफ व मानी का एक लामुतनाही सिलसिला आपके सामने बेनकाब होता चला जाएगा। इसको तुम्हारी करारगाह बनाने के लिए अल्लाह ताला ने हर तरफ पानी की बहम रसानी के लिए नदियाँ रवा कर दी हैं। कुछ ज़ाहिरी सतह पर दरियाओं चश्मों की शक्ल में तुम्हें नज़र आती हैं, कुछ ज़ेरे ज़मीन हैं उनसे जिनसे तुम कुएँ खोद कर ट्यूबवेल लगाकर और दूसरे मुख्तलिफ तरीक़ों से पानी निकालते हो। हमवार मैदान हो या ऊंचे पहाड़, हर जगह हमने तुम्हारे लिए पानी का ज़ख़ीरा फराहम कर दिया है। ज़रा गौर करो, जहाँ पानी नायाब है या उसकी सतह को हमने इतना गहरा कर दिया है जहाँ तक इस मशीनी दौर में भी तुम्हारी रसाई नहीं हुई, वहाँ तुम कोई बस्ती आबाद करके, कोई बाग लगाकर या कोई फसल काश्त करके दिखाओ तो कोई बात भी हो। कुर्रे ज़मीन मुहित हवा में मुअल्लक है। अगर हम इसको पहाड़ों के लंगरों के एक हालात पर करार ना बख्शते तो या आबादी का इम्कान तक न होता। हर वक्त इसी किस्म के खौफनाक झटके आते रहते जिनका मुशाहिदा तुम गाहे बगाहे जलजला की शक्ल में करते हो, जिनकी वजह से आन वाहिद में तुम्हारी फलकबोश इमारतें और गंजान आबादियाँ पेवंदे खाक हो जाती हैं। दरियाओं के रुख बदल जाते हैं, ज़मीन के सिकम से आग के शोले निकलने लगते हैं। हमने अपनी कुदरत व हिकमत से पहाड़ों के कील गाड़ कर उसका तवाजुन ऐसा बरकरार रखा है कि अपनी तबई हरकत से मुतहर्रिक होने के बावजूद तुम्हारे लिए किसी इज़्तिराब का बाइस नहीं बनती। फिर मीठे और खारे पानी को बाहम मिलने से हमने रोका है और तुम बसा औकात यह रुकावटें इतनी लतीफ़ और गैर महसूस होती हैं कि तुम उनका इंकिशाफ ही नहीं कर सकते, लेकिन इतनी लताफत के बावजूद वह इतनी पुख्ता और मजबूत होती हैं। क्या मजाल कि दोनों पानी आपस में खलट मलट हो सके। अब बताओ, यह सब कुछ इसकी कुदरत, हिकमत और इल्म की जलवा नुमाई है। क्या कोई और खुदा है जिससे तुम शरीके कार बता सको? जब नहीं और यकीनन नहीं तो फिर तुम किसी को अल्लाह और माबूद क्यों बताते हो? क्या इससे बड़ी हिमाकत कोई और भी हो सकती है? इबादत के लायक यह बुत हैं या वह है जो बेकरार व लाचार की फरियाद सुनता है और उसकी तकलीफ़ दूर करता है और तुम्हें ज़मीन का वारिस बनाता है? क्या अल्लाह के सिवा कोई और खुदा है? हरगिज़ नहीं। नमल आयत नंबर 62। मुजतर उस मुसीबत ज़दा को कहते हैं जिसमें मसाइब और शदायद ने इतना घबरा दिया हो कि वह हर तरफ से मुँह मोड़ कर सिर्फ अल्लाह ताला की पनाह लेने से मजबूर हो जाए। करतबी सहल बिन अब्दुल्ला से इसका यह मफ़हूम भी मज़कूर है कि वह गुनहगार जिसकी सारी उम्र गुनाहों में गुजरी, उसका नामाए आमाल नेकियों और ताअतों से अक्सर खाली हो और जब वह दुआ के लिए बारगाह इलाही में हाथ उठाए तो उसे कोई नेकी नज़र न आए जिसके वसीला से वह दुआ कर सके। उसका भरोसा महज अल्लाह ताला की शान रहमत पर हो। कुर्तबी कुफ़ार से अब एक और बात पूछी जा रही है जिसका ताल्लुक़ किसी बैरूनी चीज़ के साथ नहीं जिसको वह ठीक तौर पर समझ ना सकते हैं, बल्कि उसका ताल्लुक़ उनकी अपनी जात से है और जिसको वह खूब समझते हैं, और वह यह कि हर शख्स खाह वह कितना ही जी माल हो, उस पर ज़िंदगी में कोई न कोई मुसीबत ऐसी पड़ती है जब उसकी जाती काबिलियतें, जाती वसाइल, उसके दोस्त अहबाब सब बेबस होकर रह जाते हैं। उस वक्त उसकी निगाह अल्लाह ताला की तरफ उठती है और यह यकीन करता है कि अब उसकी चारा साजी के बगैर निजात नामुमकिन है, क्योंकि इस किस्म के हालात से हर शाह व गधा, हर अमीर व फ़कीर, हर आलिम व जाहिल को वास्ता पड़ता है। इसलिए उनसे सवाल किया जा रहा है कि उस वक्त तो तुम भी एतराफ़ करते हो कि तुम्हारे बुत या माबूदाने बातिल तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अल्लाह ताला है जो तूफ़ानों में घिरी हुई तुम्हारी कश्ती को सलामती से किनारे लगा दे, तो फिर तुम क्यों नहीं
नसीहत कबूल नहीं करते और क्यों उसकी तौहीद पर पुख्ता ईमान नहीं लाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों के हालत इज़्तिरार में जिस तरह अपने मौला करीम के सामने दुआ करने का सबक दिया है, वह तहरीर है कि ताकि सब गुलामान मुस्तफ़ा इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। ऐ अल्लाह, मैं सिर्फ तुम्हारी रहमत का उम्मीदवार हूँ, मुझे आँख झपकने की देर भी मेरे नफ्स के हवाले न कर, मेरे काम दुरुस्त फरमा दे। तेरे बगैर कोई माबूद नहीं, कुर्तबी इबादत के काबिल या बुत हैं या वह जो तुम्हें खुश्की और समुंदर की तारीकियाँ में रास्ता दिखाता है और अपनी रहमत के आगे आगे हवाओं को भेजता है। बारिश की खुशखबरी देती हुई क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? हरगिज़ नहीं। नमल आयत नंबर 63। इनसे पूछा जा रहा है कि जब रात की तारीकियों में तुम सफ़र कर रहे होते हो, उस वक्त मंजिल मकसूद का पता तुम्हें कौन देता है? किसी के रोशन किए हुए सितारों को देखकर तुम अपना रास्ता दरियाफ्त करते हो। अगर दिन के वक्त जबकि सूरज की रोशनी हर सू फैलती हुई होती है या रात के वक्त जब सितारे चमक रहे होते हैं, अल्लाह ताला भटका दे तो कोई और खुदा है जो उस वक्त तुम्हारी दस्तगीरी के लिए आगे बढ़े, तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा दे? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला की एक और मेहरबानी पर गौर करो। जब बारिश होती है तो अचानक ही सुरों के झोंके शुरू होते हैं, जिससे न सिर्फ तुम्हारी बुझी हुई तबीयत और अफसरदा मिजाज शगुफ्ता हो जाता है, बल्कि बारिश से पहले जो एहतियाती तदाबीर तुम इख्तियार करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें काफ़ी मौका मिल जाता है। तुम ऐसे रहीम और करीम को छोड़कर क्यों दूसरी चीज़ों को अपना खुदा बनाते हो? कुछ तो सोचो, अकल से कुछ तो काम लो। इबादत के काबिल यह बुत है याद हुआ है जो खलक की इब्तिदा करता है, फिर उसे दोबारा बनाएगा, और जो आसमान और ज़मीन से तुम्हें रोजी देता है। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? हरगिज़ नहीं। नमल आयत नंबर 64। अल्लाह ताला को वह खालिक जानते मानते थे, लेकिन इआदे हयात, मरने के बाद दोबारा जिंदा करने और वक़ूअ क़यामत के वकायल ना थे। उन्हें समझाया जा रहा है कि जब वह पैदा कर सकता है जो बहुत पेचीदा और मुश्किल काम है, तो वह इआदा क्यों नहीं कर सकता जो पहले काम से बदर जहाँ आसान है। अल्लाह ताला अपने तमाम अफ़ाल और सिफ़ात कमाल में यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, तो फिर किसी को उसका शरीक ठहराना कितनी बड़ी हिमाकत है। आखिर में फरमा दिया, उनमें से किसी एक के खिलाफ भी कोई दलील हो तो पेश करो, तुम्हें आम इजाज़त है। ऐ मुशरिको, पेश करो अपनी कोई दलील अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो अपनी इस ख्वाहिश पर सनद लाओ। अल-बकरा आयत नंबर 111। तुम फरमाओ कि ज़रा बताओ तो अगर अल्लाह ताला तुम्हारे कान और तुम्हारी आँखें ले तुम्हारे दिलों पर मोहर कर दे, तो अल्लाह ताला के सिवा कौन माबूद है जो यहाँ चीज़ें तुम्हें वापस ला कर दे। ज़रा देखो कि हम किस किस रंग से तौहीद के दलाइल बयान करते हैं, फिर भी वह मुँह फेरे हुए हैं, रोगर्दानी किए हुए हैं। इनाम आयत नंबर 46। अल्लाह ताला मुशरिकीन के अकीदे की बेसर पाई को एक और तरीक़ा से वाज़ह फरमा रहा है। अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देता है कि इन बेवकूफ़ों से दरियाफ़त फरमाइए कि अगर अल्लाह ताला तुम्हें अंधा और बहरा कर दे तो तुम्हारे दिलों पर गफलत के पर्दे डाल दे और समझने और सोचने की कुव्वत सलब कर ले, तो भला बताओ तुम्हारे यहाँ खुदा जिनकी तुम पूजा किया करते हो, उनमें से किसी में हिम्मत है कि वह तुम्हें यह चीज़ें अता कर दे? और अगर नहीं और हरगिज़ नहीं, तो फिर माबूदे हकीकी को छोड़कर इन बातिल और आजिज़ चीज़ों की इबादत करना कहाँ की अक्लमंदी है। इतनी वाज़ेह और मजबूत दलील है कि जिससे हर अदना और आला आमी और आरिफ यकसा तौर पर हिदायत की रोशनी हासिल कर सकता है।
कुरान का उसलूब इस्तिदलाल उकता देने वाला नहीं, बल्कि इसमें वह रंगीनी और टुनू है कि तबीयत हर बार एक नया लुत्फ़ महसूस करती है और हर एक नई लज्जत से सरशार होती है। कभी अक़ली दलाइल पेश किए जाते हैं, कभी तारीख़ी शवाहिद मज़कूर होते हैं, कभी अपनी रहमत का मुजरा सुनाया जाता है और कभी अपनी नाराज़गी और गज़ब के अंजाम से डराया जाता है। तुम फरमाओ कि ज़रा बताओ तो अगर अल्लाह तुम पर क़यामत तक हमेशा रात ही रखे तो अल्लाह के सिवा कौन खुदा है जो तुम्हें दिन का उजाला लाकर दे? क्या उसके बाद भी तुम होश से बात नहीं सुनोगे? क़सस आयत नंबर 71। उन्हें तनबीह की जा रही है कि गौर करो और सोचो, यह गूनागून नेमतें जिनसे तुम बहरावर हो रहे हो तुम्हें किसने अता की है? क्या कोई खुदा है जो इन नेमतों के बहम पहुँचाने में हिस्सेदार हो? जब नहीं और यकीनन नहीं तो फिर तुम क्यों किसी को इसका शरीक समझते हो? तुम फरमाओ कि ज़रा बताओ तो अगर अल्लाह पर क़यामत तक हमेशा दिन ही रखे तो अल्लाह के सिवा कौन खुदा है जो तुम्हें रात लाकर दे कि तुम इसमें आराम करो? क्या इतनी मोटी बात तुम्हें नहीं सूझती? क़सस आयत नंबर 72। भला बताओ तो तुम जो ज़मीन में दाने बोते हो, क्या उसकी खेती तुम तैयार करते हो या हम तैयार करने वाले हैं? हम अगर चाहें तो उससे चूरा चूरा कर दें, फिर तुम बातें बताते रह जाओ। वाक़या आयत नंबर 63 ta 65। तौहीद बारी और वक़ूए क़यामत पर एक दूसरी दलील पेश की जा रही है। खेती बाड़ी के मुतालिक तुम्हें तफसीली इल्म है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि ज़मीन में हल चलाओ और उसमें बीज डालो, उसके बाद उसके पक कर तैयार होने तक जो हैरान कुन तब्दीली होती हैं, क्या इसमें तुम्हारा भी कोई दखल है? फिर उसके लिए जितनी हरारत, ठंडक, रोशनी और रतूबत वगैरह अवामिल की ज़रूरत होती है वह मुनासिब मिक़दार में और बरवक्त कौन मुहैया करता है? क्या तुम्हारे बुतों देवी देवताओं में या कुदरत है? अगर नहीं और यकीनन नहीं तो फिर तुम अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार क्यों करते हो? नीज तो जात उस दाने को जो ज़मीन में गल जाता है, उसका फिर एक तनावर पौधा बना देती है। क्या उसके लिए मुश्किल है कि वह इंसान को खाक में मिलने के बाद नई ज़िंदगी अता फरमा दे? अगर हमें चाहे तो लहलहाते खेतों को तहस नहस करके रख दें, ना वह इंसानों की खुराक बन सके और ना हैवानात के लिए चारा का काम दे सके। तुमने ज़राअत को नफ़ा बख्श बनाने के लिए काफ़ी रुपया खर्च किया था, आला बीज महंगे दामों पर ख़रीदा था, खाद फराहम की थी, आबपासी के लिए बड़े मसारिफ बर्दाश्त किए थे। तुम्हें यह उम्मीद थी कि बड़ी आमदनी होगी, लेकिन जो खर्चा किया था वह खर्चा भी पल्ला ना पड़ा। उस वक्त तुम हसरत व यास से काफ़ी अफसोस मलने लगोगे और कहोगे, हाय अफसोस, हमारी लागत भी ज़ाया हो गई। अफसोस, हम बड़े बदनसीब साबित हुए। हम बिगाड़ने वाला वह बनाने वाला। इससे पता लगा कि रब को हारिस नहीं कह सकते, जारा कह सकते हैं, जैसे उसे तबीब नहीं कह सकते, हकीम व साफ़ी कह सकते हैं, क्योंकि हिर्स बमाइने मेहनत है, जरा बमाइने कुदरत। रब ताला मेहनत से पाक है। ऐसे ही तबीब वह जो तबाबत का पेशा करे, रब ताला उससे पाक है। अच्छा बताओ तो तुम जो आग रोशन करते हो, क्या तुमने उसका पेड़ पैदा किया या हम हैं उसके पैदा करने वाले? सूरा वाक़या आयत नंबर 72। इंसानी तमद्दुन की तरक्की और मुआशरे की बहबूद में आग को जितना दखल है वह मोहताज बयान नहीं। इससे गर्मी हासिल की जाती है, इससे रोशनी हासिल की जाती है, इससे तरह तरह के खाने पकाए जाते हैं, सनात व हिरफत में इससे काम लिया जाता है। गरज की अगर आग का वजूद न